Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus, I Muhammad Arslan Shafiq welcome you all on AppSex online sport program. This is lecture 2 of class 12 and the topic of our today discussion is types of operating system. In this video, we will discuss single-user operating system, multi-user operating system, batch processing operating system, multi-programming operating system, and multitasking operating system. Single-user operating system. The operating system that allows only one person or only one user to operate the computer at a time. It's mean that there is no multiple user at a time that we use in our today's Windows is known as single user operating system, and commonly used single user operating systems are DOS disk operating system or the older versions of Windows like Windows 95, 97 and 98. In this diagram shows the process of single user operating system. Here is the user that given a task to a computer and computer send it to CPU, that is the mind of computer, and CPU process it and then it shows a result. Multi-user operating system. As the name shows multi-user, it's mean that at a time there are multiple user of a system. The operating system that allows many users on different terminals or microcomputers to use the resource of single central computer or server in a network is known as multi-user operating system. It is used on servers in business and offices where many users have to access the same application software and other resources. Here in the diagram we see that there is only a one system which is connected with other four systems, and only one system is used by the other four users. This is known as multi-user operating system, and today Unix, Linux, Windows 2000 onward or Mac operating system. Windows 2000 onwards means that Windows XP, Windows Millennium, Windows 10, Windows 7 and Windows 8 are multi-users operating system. Batch processing operating system. A batch processing operating system is a software that groups together same type of jobs in batches and automatically execute them one by one. First of all, we have to see that what is batch. Just like our students कि जिस तरह हम कहते हैं कि 2019 का बैच गुजर गया, 2018 का बैच है, 2020 का बैच है, तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 में अटेम्प्ट किया या क्लास अटेम्प्ट की, पेपर दिए, तो हम उनको कह देते हैं जी वो 2019 का बैच है. जिन्होंने 2020 में पेपर दिए उनको हम कह देते हैं 2020 का बैच है. तो ईयर के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को एक कैटेगरी में रख रहे हैं या एक ही तरीके से देख रहे हैं. तो जो एक ही साल की वजह से, एक ही तरीके की वजह से, एक ही टाइप के या ये सेम ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बैच कह रहे हैं. इसी तरह कंप्यूटर में जब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक ही तरह के जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं कंप्यूटर को, उसको हम बैच बना के उसको सीपीयू बैच बना के उसको कर लेता है, तो वो आपके पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. इन दिस फिगर you can see that there are many jobs by many users. एक यूजर एक जॉब एट अ टाइम अगर वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है, दूसरा यूजर वही जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है, या सेम यूजर वही जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइप्स की जो जॉब्स हैं उनको इकट्ठा करेगा और एक आपके पास बैच बना देगा. बिल्कुल इसी तरह अगर वो डिफरेंट टाइप्स की हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स को उसकी तरह की मिलती जुलती सेम जॉब्स को अलग से उसका बैच बना के प्रोसेसर को देगा और प्रोसेसर उसको सॉल्व करेगा. इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ मंथ बैंक्स प्रिंट स्टेटमेंट फॉर ईच अकाउंट होल्डर
A batch processing system can easily and efficiently print each account holder statement one by one. बिल्कुल सेम इसी तरह आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो सपोज दैट वी डू 100 ट्रांजैक्शन अ मंथ, 100 ट्रांजैक्शंस। अब बैंक जो है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपकी 100 ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग नहीं कंसीडर करेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो बैंक में प्रोसेस होगा तो आपने फुल मंथ में जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं उन सब का एक बैच बना के उसको प्रोसेस करेगा और आपको एक प्रिंट जो है वो लास्ट टाइम पे मंथ के लास्ट पे आपको मिल जाता है या ईयर के लास्ट पे आपको मिल जाता है, वो जो भी टाइम उन्होंने सेट किया होता है, तो वो बैच उन्होंने बना के वो सारा का सारा काम किए। एग्जैक्टली ये एग्जांपल है हमारे पास। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग is also the ability of an operating system to execute more than one program on a single processing machine. Multi-programming means that we run multiple programs at a time on a single machine, single CPU or a single processor, like we run Google Chrome, and at the same time we run Microsoft Word, or at the same time we run Skype, or at the same time we run games. We can run two or more than two application program at a time. This is called multi-programming. In multi-programming system, when one program is busy with input-output operation, the CPU execute another program that is in queue. We can understand it by an example. In this way, multi-programming operating system uses the CPU time and the other resources of computer to improve the performance of computer. Here, this is the diagram of multi-programming operating system, that how is it work. Job 1, job 2 and n time jobs are given to operating system. To learn how the multi-programming operating system works, we have to go through from this example, and for this we have to learn two most important concepts, that are CPU burst and input output burst. CPU burst, what is CPU burst? एक सीपीयू जब किसी भी प्रोसेस को रन करता है तो वो जिस टाइम के लिए सीपीयू वो प्रोग्राम रन कर रहा होता है या उस पर वर्किंग कर रहा होता है, उस चीज को हम कहते हैं वो आपके पास सीपीयू बर्स्ट टाइम होता है। और इनपुट आउटपुट बर्स्ट मींस दैट आईओ बर्स्ट, और इनपुट आउटपुट बर्स्ट मींस दैट कि वो टाइम जिस टाइम आपका वो प्रोसेस किसी भी इनपुट डिवाइस के पास इनपुट लेने के लिए चला जाता है तो उसको हम इनपुट बर्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस 1 है हमारे पास और एक प्रोसेस 2 है, और ये जो है ये हमारे पास सीपीयू है कि किस तरह सीपीयू वर्किंग कर रहा है। तो प्रोसेस 1 हमारे पास चूंकि पहले आया है तो प्रोसेस 1 में हमारे पास 10 सेकंड्स वो कहता है कि जी आपको 10 सेकंड्स चाहिए सीपीयू के लिए, यानी कि सीपीयू का बर्स्ट टाइम चाहिए, उसका काम करने के लिए टाइम चाहिए 10 सेकंड्स। तो हम क्या करते हैं, ये 10 सेकंड के लिए सीपीयू को यूटिलाइज कर देते हैं और P1 प्रोसेस 1 को हमने अलॉट कर दिया ये सीपीयू को कि वो इसके ऊपर वर्किंग करे 10 सेकंड्स के लिए, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेस 1 को वर्किंग के लिए 10 सेकंड सीपीयू से चाहिए। आफ्टर 10 सेकंड, ये 10 सेकंड्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं सीपीयू इस पे वर्क करता है, तो जो प्रोसेस 1 है वो हमारे पास इनपुट आउटपुट के पास चला जाता है कि इनपुट और आउटपुट जो है वो बर्स्ट के लिए यूजर के पास चला जाता है कि वो कोई ना कोई इनपुट करे या आउटपुट करे। अब उन 5 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए इनपुट आउटपुट के पास गया, फिर ये वापस आएगा सीपीयू के पास, तो वो उन 5 सेकंड के लिए हमारे पास जो सीपीयू है वो फ्री हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि आपने इस फ्री सीपीयू को यूटिलाइज करना है, तो ये जो है वो हम इसको फ्री जो है वो नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसको यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज किस तरह करेगा सीपीयू, फिर वो आपके पास जो आपका प्रोसेस 2 है उसको देखें रिक्वायर्ड है 5 सेकंड, तो वो 5 सेकंड इस
P2 को यानी प्रोसेस 2 को वो दे देगा और वो यानी कि प्रोसेस 2 को सॉल्व करेगा, उस पर वर्किंग करेगा। अब फर्स्ट में 10 सेकंड उसने आपके सीपीयू ने किसको दिए, प्रोसेस 1 को। फिर वो फ्री हुआ क्योंकि प्रोसेसर से वो प्रोसेस चला गया, सीपीयू से चला गया इनपुट आउटपुट के पास, और जिस टाइम में वो फ्री हुआ उसने प्रोसेस 2 को 5 सेकंड दे दिए। और अब जैसे ही वो 5 सेकंड इसके कंप्लीट होंगे तो आप देखें सीपीयू प्रोसेस 2 के 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो उसको वो इनपुट आउटपुट के पास भेज देता है 10 सेकंड के लिए। अब उसको इनपुट आउटपुट जो है वो यूजर इसके ऊपर इनपुट या कुछ आउटपुट होगी, तो उस टाइम के लिए फिर से उस सीपीयू को यूटिलाइज किया। वो जो पिछला प्रोसेस था हमारा प्रोसेस 1 था, वो वाले 10 सेकंड उसने उस सीपीयू को दिए और सीपीयू को यूटिलाइज किया। प्रोसेस 1 हमारे पास अगेन से आ गया, और जब ये 10 सेकंड कंप्लीट हो गए तो वो फिर इसको प्रोसेस को वो 5 सेकंड के लिए वो इनपुट और आउटपुट के लिए भेज देता है। इनपुट आउटपुट बर्स्ट करने के लिए जो है वो चला जाता है, तो हमारे पास सीपीयू फिर से फ्री हो जाता है। अब वो कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि सीपीयू फ्री नहीं रह सकता आपके पास। तो वो जो 5 सेकंड में जो प्रोसेस 1 से हमें मिले जिसमें वो फ्री हो गया, उसमें हम दोबारा से वो जो प्रोसेस 2 का टाइम था उसको वापस हम इसके अंदर P2 के अंदर आ जाएगा वो, और वो उसको रन करेगा और उसको वर्किंग करेगा। तो इसी तरह हम सीपीयू की टाइमिंग फिर देख सकते हैं कि वो कम वक्त में मल्टी प्रोग्रामिंग 2 प्रोसेसेस को रन कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस रन हुआ 10 सेकंड के लिए, तो टोटल टाइम जो उसने लिया वो आपके पास था 10 सेकंड। फिर प्रोसेस 2 रन हुआ 5 सेकंड के लिए, तो आपके पास जो टोटल टाइम था वो आपके पास हो गया 15 सेकंड। फिर प्रोसेस 1 रन हुआ 10 सेकंड के लिए और आपके पास टोटल टाइम हो गया 25 सेकंड। और जब आपके पास प्रोसेस 2 फिर दोबारा से आया 5 सेकंड के लिए, तो टोटल टाइम आपके पास हो गया 30 सेकंड। अब देखें सीपीयू ने मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स लिए इन 2 प्रोसेस को रन करने के लिए हमने ये सपोज किया। अब प्रोसेस 1 जो है उसका अगर हम टोटल टाइम काउंट करते हैं तो उसको टोटल टाइम लगना चाहिए था 10 सेकंड ये, प्लस 5 15, प्लस 10 25, प्लस 5 30 सेकंड। तो 30 सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोसेस 1 को लगने चाहिए थे। इसी तरह प्रोसेस 2 को 5 and 10 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30, तो आपके प्रोसेस 2 को भी 30 सेकंड लगने चाहिए थे। लेकिन जबकि सीपीयू ने फ्री टाइम में ही उसको यूटिलाइज किया और उसको सीपीयू को इस्तेमाल किया और अपने दोनों प्रोसेसेस को रन किया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपके पास बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system is a software that executes more than one task simultaneously on a single processor machine. It's mean that 2 or more than 2 programs runs at a time on a single machine, single computer or a single processor, but actually it is not run on a same time. So we say so, but in reality no 2 tasks on a single processor machine can be executed at the same time. Actually, CPU switches from one task to the next task so quickly that appear as if all the tasks are executing at the same time. To learn the concept of multitasking, we get help from a diagram. In this diagram, you can see 6 users using a CPU at a time. In multitasking, we can say that multi-user or multitasking means that एक ही वक्त में 6 यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस सीपीयू को, या एक ही वक्त में 6 इकट्ठे जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सीपीयू। तो ये किस तरह वर्क करेगा, हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग जो कॉन्सेप्ट यूज करता है वो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है कि यूजर 1 या आपके पास प्रोसेस 1 है, उसको कंप्लीट होने के लिए 2 मिली सेकेंड्स
चाहिए। इसी तरह यूजर 2 है, उसको भी कंप्लीट होने के लिए 2 मिली सेकेंड्स चाहिए। यूजर 3 को भी कंप्लीट करने के लिए या प्रोसेस 3 को भी कंप्लीट होने के लिए आपके पास 2 मिली सेकेंड्स चाहिए। इसी तरह यूजर 4 को भी 2 मिली सेकेंड्स आपके पास चाहिए कंप्लीट होने के लिए। यूजर 5 को भी 2 मिली सेकेंड्स चाहिए। यूजर 6 को भी 2 मिली सेकेंड्स चाहिए। तो हमने क्या किया, इनको टाइम बाउंड कर दिया। प्रोसेस में हम यूजर 1 को या प्रोसेस 1 को 2 मिली सेकेंड दे रहे हैं, यूजर 2 को भी 2 मिली सेकेंड दे रहे हैं, यूजर 3 को भी 2 मिली सेकेंड दे रहे हैं। इसी तरह यूजर 4, 5 और 6 को भी हम 2 मिली सेकेंड्स दे रहे हैं। अब होगा इस तरह के 2 मिली सेकेंड्स एक फर्स्ट प्रोसेस या यूजर 1 यूज करेगा और उसके फौरन बाद 2 मिली सेकेंड्स के लिए प्रोसेस जो है वो यूजर 2 के पास चला जाएगा, या एप्लीकेशन जो आपके पास दूसरा प्रोसेस है वो उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू। इसी तरह उसके फौरन बाद जो 2 मिली सेकेंड्स के लिए है वो यूजर 3 को या प्रोसेस 3 को सीपीयू जो है वो रन करेगा। इसी तरह यूजर 4 को भी 2 सेकंड के लिए मिली सेकेंड्स के लिए वो सीपीयू रन करेगा, और इसी तरह यूजर 5 को और इसी तरह यूजर 6 को। अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम शेयर कर रहे हैं कि 2 मिली सेकेंड्स आप हर प्रोसेस को दे रहे हैं। अब ये जो 2 मिली सेकेंड्स फिक्स टाइम हम दे रहे हैं, ये रैपिडली बहुत स्पीड के साथ मूव करता है 1 से 2 जो है वो यूजर तक और दूसरे प्रोसेस तक या तीसरे प्रोसेस तक। तो ये जो फास्टली मूवमेंट हो रही है आपके पास इस वक्त की, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही वक्त में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेस 1 को अलग टाइम मिल रहा है, प्रोसेस 2 को अलग मिल रहा है, प्रोसेस 3 को अलग मिल रहा है, लेकिन इनके दरमियान चूंकि वो जो है वो बहुत स्पीड में यूजर 1 से या प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो है मूवमेंट हो रही है, सीपीयू मूव कर रहा है, उसको वर्क कर रहा है, तो इस वजह से ऐसा फील होता है कि ये मल्टीटास्किंग में एट अ टाइम एक ही टाइम के अंदर जो है वो 5, 6 और मोर देन 5 और 6 यूजर्स और प्रोसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर। मल्टीटास्किंग में एक मतलब कि फिक्स टाइम जो रियल जो टाइम शेयरिंग है उसके साथ हम चल रहे हैं, जबकि उसमें फिक्स टाइम होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में फिक्स टाइम नहीं होता, वो जो दरमियान में इनपुट आउटपुट बर्स्ट होने के लिए जो वक्त उसको मिलता है, जो टाइम मिलता है, उसके दरमियान वो नया प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। एंड इन दिस वे मल्टीटास्किंग वर्क्स। So this question is very important. What is the difference between multi-programming and multitask? That's all for today. In the next video, we will discuss the remaining types of operating system. Inshallah. Thank you.